میری آواز آپ تمام سامعین پر جی بھائی، میری آواز صاف طریقے سے آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ لوگوں کو آ رہی ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک فون سے دوسرے فون کے ذریعے آواز جا رہی ہے، تو مجھے تو جو آپ کے ساتھ تشریف فرما نہیں ہے اس وقت، جو اپنے اپنے موبائلز پر سن رہے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آواز بالکل صاف ہے تو میں پھر شروع کروں. جی بھائی میسج آ رہے ہیں. جی بھائی آواز آ رہی ہے. جی بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے صاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز پاکستانیوں، جو اور جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، میں وہاں تمام سننے والوں کو، تمام خواتین کو، محترم خواتین، محترم سامعین، صحافی حضرات، مختلف شعبات کے مختلف شعبات سے تعلق رکھنے والے اکابرین، اسٹوڈنٹس، میری گزارش ہے کہ آپ میری باتوں کو غور سے سنیں. آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض. تسلیمات. معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے شاید ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کر کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بنائے گئے پاکستان کے لفظ کو مٹا کر نئے ممالک کو جنم دینے کا پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں جس طرح کی مینیپولیشن، جیری وینڈرنگ مینیپولیشن دھاندلی کی ہے،
اگر اس کی جانے والی مینیپولیشن، جیری مینڈرنگ اور دھاندلی زدہ الیکشن کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور صدر پاکستان نے کالعدم قرار نہیں دیا، تو جو میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ یہ ایک اور سابقہ سانحِ مشرقی پاکستان یہ عمل جو سابقہ مشرقی پاکستان میں 1970 کے الیکشنز میں کیا تھا، اس کا آغاز اب فوجی جرنیلوں نے شروع کر دیا ہے۔ آیا فوجی جرنیل یہ تمام مینیپولیشن، جیری مینڈرنگ اور دھاندلیاں جو انہوں نے 8 فروری کے الیکشنز میں کی، آیا انہوں نے اپنی طرف سے کی؟ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر آپ پارا نے مل کر یہ کی از خود؟ تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، پاکستان کو توڑنے کا، موجودہ پاکستان کو مزید توڑنے کا عمل شروع کیا ہے۔ اور اگر پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں، الیکشنز میں جو مینیپولیشنز کی، جو جیری مینڈرنگز کی، جو دھاندلیاں کی، وہ دھاندلیاں کسی بیرونی آقاؤں کے اشاروں پر کی گئی ہیں، تو پھر اسے کھلی ملک سے غداری قرار دوں گا۔ اس الیکشن میں جو فوجی جرنیلوں نے جو مینیپولیشن کی، اس کے اس عمل کو اگر انہوں نے بیرونی آقاؤں کے اشارے پر کی، تو اسے میں غداری سے تعبیر کروں گا۔ صدر پاکستان میں اگر جرأت اور ہمت ہے تو وہ فوری طور پر اپنے اختیارات، کیونکہ وہ فوج کے تمام مسلح افواج کے وہ سربراہ ہیں، تو ان کا حق ہے کہ وہ ان عام انتخابات کو کالعدم قرار دے کر پاکستان کو بچانے کا عمل کرے۔ اور اگر نہیں کریں گے وہ، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس مداخلت کر کے اس عمل کو کالعدم قرار نہیں دیں گے، تو پاکستان کو جو مستقبل میں نقصان پہنچے گا، اس کی سروائیول، اس کے ایگزسٹنس، اس کی بقا سلامتی کے لیے، اس میں آپ سب بھی شامل ہوں گے جن کے میں نے نام لیے۔ اور یہ خواتین و حضرات، میں اپنی بات کو آگے ضرور بڑھاؤں گا اور بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ یہ بریفنگ بہت طویل ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ پاکستان کے
मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि मुल्क में मौजूद तमाम पार्टियों को फौरी तौर पर आप, जो मैं इस वक्त ऑडियो स्पीच कर रहा हूं, उसका लिंक तमाम मुल्क में मौजूद जो सियासी व मजहबी जमातें हैं और जिन जिन लोगों के पास ट्विटर हो या व्हाट्सएप नंबर हो या फेसबुक और उनके यूट्यूब चैनल्स के अकाउंट नंबर्स हो, तो प्लीज आप सब फौरन लिंक के साथ, जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं उस लिंक के साथ उन्हें कर दें, ताकि पाकिस्तान के तमाम सूबों के अवाम पाकिस्तान में फौजी जर्नैलों में 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जो धांधलियां की हैं, उससे वो भी आगाह हो सके और मेरी आईटी टीम के साथियों से, आईटी के इंजीनियर साहिबान से मेरी ये गुजारिश होगी कि अगर वो पैकेज धांधलियों का वीडियो की शक्ल में जो मौजूद है, अगर वो किसी तरीके से उसे दोबारा चला दे तो ऐन नवाजिश होगी। शुक्रिया। और अगर नहीं चला सकते तो भी बता दे ताकि मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूं। जी, टेक्निकल टीम, जो वीडियोस हमने दिखाई हैं धांधली के हवाले से, तो वो उसी तरह से आप दिखा दीजिए ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी वो पायतरी जनाब अल्ताफ हुसैन जो खिताब फरमा रहे हैं उसमें वो देख सकें। तो टेक्निकल टीम प्लीज उनको उन वीडियोस को दिखाएं धांधली के हवाले से जो थी, एक एक करके उसी। ये एक पोलिंग स्टेशन है सईदाबाद का, क्या नाम है पोलिंग स्टेशन का? ये पीला स्कूल पोलिंग स्टेशन। यहाँ मुकम्मल धांधली करते हुए हमारे पोलिंग एजेंट ने धांधली का लेटर ऑफिसर से ले लिया है। खास पार्टी की वो मुकम्मल धांधली कर रहे थे। ये पूरे सबूत के साथ हाजिर है। NA 242 PS 113 है। ये हमने ये सारी चीजें हासिल कर दी है। ये अब अगर कोई कहते हैं ना कि आवाम की जोर से जीता है, ये पूरे सबूत, सारे सबूत हमारे पास लेके आइए। देखो ये संभाल लो, ये पूरे सबूत हमारे पास है। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये पूरे टप्पे लगा रहे थे। हम लोगों पे तशद्दुद किया गया है। असले की जोर में टप्पे लगाए गए। ये देखें, अरे रुको जा, मुफ्ती साहब को बोलने दो यार। जाओ मेरा तो मुझे बातें करो। सबको वायरल होगा, सबसे वायरल होगे। शक्लें देखो अपनी शक्लें। ये भाई इंचार्ज के बाद पहुंचे नहीं हो सकता भाई। रेंजर्स वालों ने छोड़ा है, सामान सारा उठा के आप बनाए, वीडियो बनाए, उसका वेट कर रहा है। नहीं यार, नहीं करो, नहीं करो।
गिटार गिटार PTI गिटार गिटार पी गिटार दूसरी जगह लगाओ। पहली दवाई आप ये लात मारिए। ये दहशतगर्द घुसे हैं, सारे पोलिंग स्टेशन के तोड़ दिए गए हैं, स्कूल तोड़ दिए गए हैं, क्या वहाँ के भी तोड़ दिए। ये दस्तगीर गर्ल्स स्कूल है जिसमें तमाम पोलिंग बॉक्स तोड़ दिए गए हैं। रेंजर्स बाहर खड़ी भी तमाशा देख रही है, पुलिस बाहर खड़ी भी तमाशा देख रही है। पूरे पोलिंग बॉक्स तोड़ दिए गए हैं, तमाम एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है, प्रिजाइडिंग अफसर को निकाल दिया गया है, सारे तोड़ के भाग गए दहशतगर्द। ये देखिए बाहर चले, मैं कह रहा हूं बाहर चले, इधर बाहर नहीं जाते। ये ऑफिसर है, हम ये प्रेसिडेंट ऑफिसर है, इसीलिए प्रेसिडेंट ऑफिसर को साइड पर ले जा रहे हैं। बेटा बाहर उधर चल साइड पर बाहर। ये एक पोलिंग स्टेशन है सईदाबाद का, क्या नाम है पोलिंग स्टेशन का? ये पीला स्कूल, पीला स्कूल पोलिंग स्टेशन। यहाँ मुकम्मल धांधली करते हुए हमारे पोलिंग एजेंट ने धांधली का लेटर ऑफिसर से ले लिया है। खास पार्टी की वो मुकम्मल धांधली कर रहे थे। ये पूरे सबूत के साथ हाजिर है। NA 242 PS 113 है। ये हमने ये सारी चीज़ें हासिल कर दी है। ये अब अगर कोई कहते हैं ना कि आवाम की जोर से जीता है, ये पूरे सबूत, सारे सबूत हमारे पास लेके आइए। देखो ये संभाल लो, ये पूरे सबूत हमारे पास है। ये देखो, ये आप देख रहे हैं, ये पूरे टप्पे लगा रहे थे। हम लोगों पे तशद्दुद किया गया है। असले की जोर में टप्पे लगाए गए। ये देखें, मुफ्ती साहब को बोलने दो यार। जाओ मेरा तो मुंह छुपाते फिर सबको वायरल होगा, सब वायरल होगे। शक्लें दिखाओ अपनी शक्लें। ये भाई इंचार्ज नहीं हो सकता भाई, रेंजर्स वालों ने छोड़ा है। सामान सारा उठा के आप बनाए, वीडियो बनाए, इसका वेट कर रहे हैं। नहीं यार, नहीं लगाओ, नहीं करो। गिटार PTI गिटार पी गिटार दूसरी जगह लगाओ। पहली दवाई आप ये लात मारिए। ये दहशतगर्द घुसे हैं, सारे पोलिंग स्टेशन के तोड़ दिए गए हैं, स्कूल तोड़ दिए गए हैं, क्या वहाँ के भी तोड़ दिए। ये दस्तगीर गर्ल्स स्कूल है जिसमें तमाम पोलिंग बॉक्स तोड़ दिए गए हैं। रेंजर्स बाहर खड़ी भी तमाशा देख रही है, पुलिस बाहर खड़ी भी तमाशा देख रही है। पूरे पोलिंग बॉक्स तोड़ दिए गए हैं, तमाम एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है, प्रिजाइडिंग अफसर को निकाल दिया गया है, सारे तोड़ के भाग गए दहशतगर्द। ये देखिए बाहर चले, मैं कह रहा हूं बाहर चले, इधर बाहर नहीं जाते। ये ऑफिसर है, हम ये प्रेसिडेंट ऑफिसर है।
इसीलिए प्रधान ऑफिसर को साइड पर ले जा रहे हैं। बेटा वहां से चल जाओ साइड पर बाहर। अल्लाह क्या बोली, ऐसा तो नहीं होते यार। ये देखो मुस्तफा कमाल निकल रहे नाज़रीन, देखो ये देखो ठप्पे मार के निकल रहे नाज़रीन। ये देखो पकड़ो उनको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ इसको, पकड़ दो पीछे पकड़ो थोड़ी देर। ये देखो मुस्तफा कमाल के बंदे, ये देखे नाज़रीन, ये देख रहे मुस्तफा कमाल के हालत। ये देखो मुस्तफा कमाल की हरकत देखो, ये देखो ये मुस्तफा कमाल, ये चोर है मुस्तफा कमाल, ये ठप्पे देखो, ये देख सकते हैं नाज़रीन। गाड़ी का व्हीकल नंबर नोट कर, ये गाड़ी का व्हीकल नंबर है, ये रहा भाई, ये रहा भाई। बल्दिया टाउन वाली आपके होते हुए वो लेके कैसे गए, मुझे आप ये बताएं, आपके होते हुए लेके कैसे गए वो बूथ यहाँ से? सर आपके पास भी, उनके पास भी असला था, आपके पास भी असला था, ठीक है, कैसे उनकी हिम्मत हुई? आपकी यहाँ पे ड्यूटी है ना, ऐसों को तो आप भले मारे, गलत कर रहे हैं ना वो चीज़। ये हुक्म है कि वो लेके चले जाए यहाँ से। सर हर बूथ पे ये एमकेएम के तंग कर रहे हैं, हर बूथ पे वहाँ पे लेडीज बूढ़ी खड़ी हुई है सर, सबको कह रहे हैं उनका नंबर है, नहीं ले रहे हैं उनसे। आपका नंबर यहाँ नहीं है, आपका नंबर यहाँ नहीं, ये क्या तरीका है सर? नहीं तो उनकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की सर? तो ये कंप्लेन किधर होगी सर? ये कंप्लेन ही के लिए अभी चीफ अभी आए हैं हम लोग। तो क्यों नहीं आ रहे वो? जब टाइम खत्म हो जाएगा जब आएंगे सर? चीफ पोलिंग एजेंट हमारे और पीटीआई के, मैं जमात इस्लामी से हूँ, ये पीटीआई से हमारे चीफ। सर आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे? आगे जो यहाँ पे बड़ी थी, यहाँ पे जो चोरी और दरखास्तें देखें, हम लोग ये कर सकते हैं, दरखास्तें लिखवाकर इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हम सिग्नेचर करवाते जा रहे हैं। लेकिन सर इतने यहाँ पे सबके होते हुए इनकी हिम्मत कैसे हुई आने की सर? इंशाअल्लाह ताला अगर इनको इस दुनिया में नहीं देखने को मिला तो इनको आखिरत में तड़प के मरेंगे, कीड़े पड़ेंगे इनके, जिस तरह से ये कर रहे हैं ना। इंशाअल्लाह मौत भी मांगेंगे, इनको मौत नहीं मिलेगी। थोड़ा सा भी जो शरीक है उसको भी देखने को मिलेगा, थोड़ा सा भी जो शरीक। नाजायज इतनी उम्र की लेडीज। अल्लाह क्या बोली, ऐसा तो नहीं होते यार। ये देखो मुस्तफा कमाल निकल रहे नाज़रीन, देखो ये देखो ठप्पे मार के निकल रहे नाज़रीन। ये देखो पकड़ो उनको, पकड़ो इसको, पकड़ इसको, पकड़ दो पीछे पकड़ो थोड़ी देर। ये देखो मुस्तफा कमाल के बंदे, ये देखे नाज़रीन, ये देख रहे मुस्तफा कमाल के हालत। ये देखो मुस्तफा कमाल की हरकत देखो, ये देखो ये मुस्तफा कमाल, ये चोर है मुस्तफा कमाल, ये ठप्पे देखो, ये देख सकते हैं नाज़रीन। गाड़ी का व्हीकल नंबर नोट कर, ये गाड़ी का व्हीकल नंबर है, ये रहा भाई, ये रहा भाई। क्या बोली, ऐसा तो नहीं होते यार। ये देखो मुस्तफा कमाल निकल रहे नाज़रीन, देखो ये देखो ठप्पे मार के निकल रहे नाज़रीन। ये देखो पकड़ो उनको, पकड़ो इसको, पकड़ इसको, पकड़ दो पीछे पकड़ो थोड़ी देर। ये देखो मुस्तफा कमाल के बंदे, ये देखे नाज़रीन, ये देख रहे मुस्तफा कमाल के हालत। ये देखो मुस्तफा कमाल की हरकत देखो, ये देखो ये मुस्तफा कमाल, ये चोर है मुस्तफा कमाल, ये ठप्पे देखो, ये देख सकते हैं नाज़रीन। गाड़ी का व्हीकल नंबर नोट कर, ये गाड़ी का व्हीकल नंबर है, ये रहा भाई। तो ऐसे ही रखना है, तो ऐसे ही रखना है यार, ये सबूत है। हम फाड़ेंगे तो हमारे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। अभी हम ऐसे ही रखेंगे और अभी हम ये डीसी ऑफिस में डंडा करवाएंगे। ये वाला आप रखें, वो वाला हम रखें, दोनों मिलके पूरे तरीके से जीरो पा रहे हैं, समझ लें, ठीक है। लेकिन पहले को नंबर बन जाना और बहुत पहले काम हो जाता है इसका। इन्हीं वजहों से जो है गिनना उसको भी है, हाँ सब गिनती है। ये रखिए उसको, अरे ये कमियान में जब तक दो है ना, दो हटा हुआ इधर नहीं कर पाया गाड़ी। डालो वेद तो भी डालो वेद, तो वो रख दिया है। ये कितना है? वो 100
मशीन लगाया है कुछ कहाँ है मांग रहा है तेरे पास नहीं है दे दे देने के बाद तुम लोग लेके घूम गए सही है सही है मौसम का सब आया भाई के सब कुछ स्टेशन नंबर क्या बताया स्टेशन नंबर 71 और 72 सैम्यूल क्रिश्चियन कॉलोनी सैम्यूल स्कूल सर जॉर्ज यूनुस और लियाकत के सरबराही में MQM पाकिस्तान ने एजाजुल हक जी और जो मजीद हैं वो भी आप दिखाइए जो पहले दिखाइए आपने सवाल करें आपके होते हुए वो लेके कैसे गए मुझे आप ये बताएं आपके होते हुए लेके कैसे गए वो बूथ यहाँ से सर आपके पास भी उनके पास भी असला था आपके पास भी असला था ठीक है कैसे उनकी हिम्मत हुई आपकी यहाँ पे ड्यूटी है ना ऐसों को तो आप भले मारें गलत कर रहे हैं ना वो चीज ये हुक्म है कि वो लेके चले जाए यहाँ से सर हर बूथ पे ये MQM के तंग कर रहे हैं हर बूथ पे वहाँ पे लेडीज बूढ़ी कड़ी है सर सबको कह रहे हैं उनका नंबर है नहीं ले रहे हैं उनसे आपका नंबर यहाँ नहीं है आपका नंबर यहाँ नहीं ये क्या तरीका है सर नहीं तो उनकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की सर तो ये कंप्लेन किधर होगी सर ये कंप्लेन ही के लिए अभी चीफ अभी आए हैं हम लोग तो क्यों नहीं आ रहे वो जब टाइम खत्म हो जाएगा जब आएंगे सर चीफ पोलिंग एजेंट हमारे और PTI के मैं जमात इस्लामी से हूँ ये PTI से हमारे चीफ सर आप कंप्लेन क्यों नहीं कर रहे आगे जो यहाँ पे बड़ी थी यहाँ पे जो चोरी और दरखास्तें हेलो जी भाई आपकी आवाज आ रही है मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन आपने ये चंद मनाजिर देखे क्या आपने अपनी पूरी जिंदगी में अगर आपने इससे पहले कभी किसी इलेक्शंस को देखा है या कई इलेक्शंस देख चुके हैं आप मुझे जवाब दीजिए कि पाकिस्तान में इससे पहले पोलिंग स्टेशनों पे अच्छा एक पोलिंग स्टेशन पर नहीं हर पोलिंग स्टेशन पर ये खुली गुंडागर्दियां
फौज के जवानों की फौजी वर्दी में मलबूस फौजियों की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मुतय्यन करदा ROs, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो तो जाहिर है कि सिविलियन तबके से ताल्लुक रखते हैं। उनका काम फराइज की जो उन्हें दिया जाता है उसे पूरा करना होता है, लेकिन वो असला से लैस और फौज की प्रोटेक्शन में पोलिंग स्टेशनों में दाखिल हो, बैलेट पेपर्स, बुक्स उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर से छीन कर ले जाए और घरों में ले जाकर उन पे मोहरे लगाकर उन्हें बोरियों में भरकर पोलिंग स्टेशनों पर वापस लाए। लोग, माएं, बेटियां, बुजुर्ग, जवान वो फरियादें करते रहे और वहां पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद पोलिंग एजेंट्स तमाम सियासी जमातों के जो मौजूद थे वो जाहिर है कि शोर मचा सकते थे, शिकायत कर सकते थे, चीख चिल्लाहट कर सकते थे, लेकिन वो असला बरदारों से और फौजियों से जो पूरी तरह मुसल्लह थे उनसे सिवाय फरियादें करने के और क्या कर सकते थे। पाकिस्तान में मौजूद वो लोग जो 8 फरवरी 2024 के दिन पूरे पाकिस्तान में जो वोट डालने गए, इंक्लूडिंग माए बहने, वो खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस मर्तबा पूरे पाकिस्तान में PTI के चाहने वालों ने जिस तरह इलेक्शन दफातर पर अलग सुबह से वोट डालने के लिए वहां पहुंचे, ऑफिसेस, इलेक्शन ऑफिसेस, तमाम जहां जहां इंतखाबी बूथ होते हैं, इलेक्शन ऑफिस होता है जहां वोट डाले जाते हैं, उन बूथ पर इस तरह लाइनें लगाई कि वो लाइनें कई फरलांग तो गुजा, वो कई किलोमीटर या माइल्स तक पहुंच गई। ये PTI के चाहने वाले थे। सिंध के शहरी इलाकों में जब से फौज की बनाई हुई MQM पाकिस्तान के नाम से जो फौज ने जमात बनाई, जिसमें PSP उसे भी फौज ने बनाया था, वो
से ही आपस में मिल गए ताकि मिलाकर जब आइंदा इलेक्शंस होंगे तो हम ये तासुर देंगे कि ये मिल गए हैं, तो सिंध में रहने वाली उर्दू बोलने वाली और सिंधी बोलने वाले वो लोग जो MQM को, इस MQM को जिसे अल्ताफ हुसैन ने कायम किया था, उस MQM के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए वो घरों से इतनी बड़ी तादाद में निकले जिसमें माँ बहने, बुजुर्ग, नौजवान, दरमियानी उम्र के लोग थे, लाखों की तादाद में। क्यों निकले? सिंध से बाहर दीगर सूबों में रहने वाले वो इस बात से शायद वाकिफ ना हो कि इस मर्तबा MQM लेड बाय अल्ताफ हुसैन अदालत के कमरे से PTI के सरबराह इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। अवाम जिस तरीके से अदालत के कमरे से फौज रेंजर्स उसको कहते हैं, तो समझते हैं लोग ये फौज नहीं है। भाई वो फौज ही है। उसने जिस तरह अटैक किया, जिस तरह वहां बुकला को अदालत के कमरे में लहूलुहान किया और जिस बदतमीजी और तशद्दुद के जरिए इमरान खान को घसीटते हुए ले गए, ये मनाजिर जब हकाइक और इन मनाजिर के हकाइक जब अवाम तक पहुंचे तो अवाम का गुस्से में आना फितरी था। 9 मई को उन्होंने एहतजाज किया। उस एहतजाज को, और ये फौज को मालूम था, फौज के जनरल बखूबी वाकिफ थे कि एहतजाज होगा, तो इस PTI के एहतजाज को उसी तरह जिस तरह MQM के माजी के एहतजाज को अपने हुंडों के जरिए चलाओ, घेराव, तशद्दुद की वारदातें कराची, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में कराते थे, और उसका इल्जाम MQM अल्ताफ हुसैन, दहशतगर्द, मुल्क दुश्मन, गद्दार। तो अब गद्दार साबित करने के लिए फौज को पंजाब के अवाम के सामने और KPK के लोगों के सामने तो पेश करना ही था। उन्हें मालूम था कल अवाम, यानी 9 मई को, 8 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं और 9 मई 2023 को अवाम एहतजाज करते हैं। ये मालूम था फौज को कि एहतजाज करेंगे। तो PTI के एहतजाज को किस तरह से ऐसा किया जाए कि PTI पर इल्जाम लगाया जाए कि इन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया, इन पर इल्जाम लगाया जा सके कि इन्होंने मॉन्यूमेंट्स जो थे शुहदा के उसे तोड़ा, उसकी बेहुरमती की, और न जाने क्या क्या इन्होंने हर जगह पुरअमन एहतजाज को तशद्दुद में बदल दिया। खुद सादा कपड़ों में मलबूस वीगो गाड़ियों में आते हैं, कोई पहचान सकता है कि ये पुलिस वाले हैं या फौज वाले हैं? ISI वाले होते हैं, वो जो सिविल कपड़ों में होते हैं, वीगो गाड़ियों में आते हैं, और इन्हीं वीगो गाड़ियों में उसके सामने कारें चलती रही, पीछे वो उसकी हिफाजत करते रहे, बोरियां भर के लाके। इस तरह वहां पर इन्होंने डब्बे भरे, सील किए, लेकिन क्योंकि पोलिंग एजेंट्स पर
जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पोलिंग एजेंट्स भी बैठे हुए थे, तो उनके सामने तो इनकी सारी धांधली नाकाम हो गई और पोलिंग एजेंट्स जो जहां जहां इन्होंने अंदर घुस के डब्बे ले गए या ठप्पे लगाए, तो वहां जाहिर है कि पोलिंग एजेंट्स ने एहतजाज किया। पोलिंग एजेंट्स ने जब एहतजाज किया तो उनसे कहा आप रिपोर्ट करते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा हम क्या कर सकते हैं, आरओज ने कहा हम क्या कर सकते हैं। वहां बैठे हुए तमाम लोगों ने एक काम जरूर किया पोलिंग एजेंट्स ने कि जितने नताइज आए थे वो वहां से उसके जितने हुए थे, यानी जिस पोलिंग बूथ पर थे उन्होंने R45 फॉर्म लिया। ये बहुत अच्छा किया। और वो जमात इस्लामी के जो कराची के पोलिंग एजेंट्स हैं, हैदराबाद के, उन सब के पास वो R45 फॉर्म मौजूद है, जिनमें कहीं भी एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो चंद 100 तो ले सकी, हजारों में उनके कई वोट नहीं थे। ये इस बात की तस्दीक जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब कर चुके हैं और मजीद कोई अगर करना चाहे तो उनसे राब्ता कर सकता है कि भाई अल्ताफ हुसैन फौज पर ऐसे ही इल्जाम लगा देता है, लेकिन अब तो पंजाब के लोग गवाह हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ के मुकाबले में हजारों की लीड से जीत रही थी, हजारों की लीड से। राजा असलम एडवोकेट जो है, असलम राजा एडवोकेट मायानाज, वो जीत रहे थे। पंजाब से पीटीआई के तमाम आजाद उम्मीदवार जो थे वो जीत रहे थे और सूबे सरहद से भी जीत रहे थे, लेकिन सूबे सरहद में भी धांधलियां की, लेकिन पश्तून अवाम जो है उनके सामने फौज की वर्दियों में आकर इस तरह की खुली गुंडागर्दी करना जिस तरह कराची में की, पंजाब में की, उस तरह की खुलेआम नंगी जैसे कराची और सिंध के शहरी इलाकों में और पंजाब में की, वो नहीं कर सकते थे। लेकिन पंजाब के पोलिंग एजेंट्स ने भी पीटीआई के फॉर्म R45 जितना नतीजा मिल सका था उस पर दस्तखत करा के वो लाए। हर जगह वो जीत रही थी। 12 बजे पोलिंग बंद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन से वालों को हिदायत क्या, उन लोगों को प्रिसाइडिंग अफसर आरओज को पकड़ने बंद कर दिया फौज ने। नताइज रुक गए और पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट चैनल्स इलेक्शन कमिश्नर से, अपने मकामी इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता करते रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया कि वो रिजल्ट बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं, बाकी नताइज और क्यों नहीं आ रहे हैं। यहां तक के 1 बज गया, 2 बज गए, रात के 3 बज गए, 4 बज गए, तो अचानक 4 बजे के बाद आरोस को सबको फौज ने बंद कर दिया था। उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए थे और फिर अब तमाम आरोस को बंद कर दिया था। अब सारी ठप
ठप्पागिरी तो नहीं, क्योंकि इस वक्त इतना नहीं था कि ठप्पे लगाते फौजी ISI वाले। तो अब तैयार हुआ आप पारा के अंदर तमाम नताइज, तमाम PTI के जीते हुए लोग, उन्हें हरा दिया गया, यास्मीन राशिद साहिबा को हरा दिया। और इन्हीं वीगो गाड़ियों में उसके सामने कारें चलती रही, पीछे वो उसकी हिफाजत करते रहे, बोरियां भर के लाके। इस तरह वहां पर इन्होंने डब्बे भरे, सील किए। लेकिन क्योंकि पोलिंग एजेंट्स पर जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के पोलिंग एजेंट्स भी बैठे हुए थे, तो उनके सामने तो इनकी सारी धांधली नाकाम हो गई। और पोलिंग एजेंट्स जो जहां जहां इन्होंने अंदर घुस के डब्बे ले गए या ठप्पे लगाए, तो वहां जाहिर है कि पोलिंग एजेंट्स ने एहतजाज किया। पोलिंग एजेंट्स ने जब एहतजाज किया तो उनसे कहा आप रिपोर्ट करते ही। प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा हम क्या कर सकते हैं, आरोज ने कहा हम क्या कर सकते हैं। वहां बैठे हुए तमाम लोगों ने एक काम जरूर किया पोलिंग एजेंट्स ने, कि जितने नताइज आए थे वो वहां से उसके जितने हुए थे, यानी जिस पोलिंग बूथ पर थे उन्होंने R45 फॉर्म लिया। ये बहुत अच्छा किया। और वो जमात इस्लामी के जो कराची के पोलिंग एजेंट्स हैं, हैदराबाद के, उन सब के पास वो R45 फॉर्म मौजूद है, जिनमें कहीं भी MQM पाकिस्तान जो है वो चंद 100 तो ले सकी, हजारों में उनके कई वोट नहीं थे। ये इस बात की तस्दीक जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब कर चुके हैं, और मजीद कोई अगर करना चाहे तो उनसे राब्ता कर सकता है कि भाई अल्ताफ हुसैन फौज पर ऐसे ही इल्जाम लगा देता है। लेकिन अब तो पंजाब के लोग गवाह हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा नवाज शरीफ के मुकाबले में हजारों की लीड से जीत रही थी, हजारों की लीड से। राजा असलम एडवोकेट जो है, असलम राजा एडवोकेट मायानाज, वो जीत रहे थे। पंजाब से PTI के तमाम आजाद उम्मीदवार जो थे वो जीत रहे थे, और सूबे सरहद से भी जीत रहे थे। लेकिन सूबे सरहद में भी धांधलियां की, लेकिन पश्तून अवाम जो है उनके सामने फौज की वर्दियों में आकर इस तरह की खुली गुंडागर्दी करना, जिस तरह कराची में की, पंजाब में की, उस तरह की खुलेआम नंगी जैसे कराची और सिंध के शहरी इलाकों में और पंजाब में की, वो नहीं कर सकते थे। लेकिन पंजाब के पोलिंग एजेंट्स ने भी PTI के फॉर्म R45 जितना नतीजा मिल सका था उस पर दस्तखत करा के वो लाए। हर जगह वो जीत रही थी। 12 बजे पोलिंग बंद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन से वालों को हिदायत कर, अरे हिदायत क्या, उन लोगों को प्रिसाइडिंग अफसर ROs को पकड़ने बंद कर दिया फौज ने। नताइज रुक गए, और पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट चैनल्स इलेक्शन कमिश्नर से, अपने मकामी इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता करते रहे, लेकिन
किसी ने जवाब नहीं दिया कि वो रिजल्ट बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं, बाकी नताइज और क्यों नहीं आ रहे हैं। यहां तक के क्या 1 बज गया, 2 बज गए, रात के 3 बज गए, 4 बज गए, तो अचानक 4 बजे के बाद आरोस को सबको फौज ने बंद कर दिया था, उनके मोबाइल वगैरह छीन लिए थे। और फिर अब तमाम आरोस को बंद कर दिया था। अब सारी ठप्पागिरी तो नहीं, क्योंकि इस वक्त इतना नहीं था कि ठप्पे लगाते फौजी ISI वाले। तो अब तैयार हुआ, आप पारा के अंदर तमाम नताइज, तमाम PTI के जीते हुए लोग, उन्हें हरा दिया गया। यास्मीन राशिद साहिबा को हरा दिया, राजा असलम साहब को हरा दिया, और PTI के दर्जनों, कई दर्जनों, 1 दर्जन नहीं, कई दर्जनों आजाद उम्मीदवारों को नाकाम करार दिया। और कराची के में अचानक नताइज, वो नताइज जो आपारा में फौज तैयार कर रही थी, GHQ में तैयार कर रही थी, आपारा में तैयार कर रही थी, या जहां भी तैयार कर रही थी, वो रिजल्ट आते रहे। प्राइवेट चैनल्स वो रिजल्ट बताते रहे, सारा मामला उल्टा कर दिया गया, जीतों को हरवा दिया गया और हारने वालों को जितवा दिया गया। ये इलेक्शंस हुए हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड बशमूल अमेरिका ने, बहुत से तज्जिया निगारों ने इसे फ्रॉड इलेक्शन करार दिए हैं। आपको दिखाया भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के वजीर आजम का लफ्ज फ्रॉड इस्तेमाल किया है, फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस, मैनिपुलेटेड, जेरीमेंडर्ड। अब आपको एक बात और बताता हूं, पाकिस्तान के लोगों के लिए और MQM और अल्ताफ हुसैन की, जिसका बानी अल्ताफ हुसैन है, तो अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले साथियों, माँ बहनों, आप सुनो, कि चंद 100 वोट लेने वाले, हर जगह शिकस्त खाने वाले, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर आने वाले, उन्हें अजीमुश्शान फतह दिलवाई गई। और इसी तरह सूबा सरहद में, जहां धांधली का नतीजा, सूबा सरहद यानी KPK में जहां धांधली की गई, वहां के पोलिंग एजेंट्स के पास जो R45 फॉर्म, R45 मौजूद है, वो लोग भी। और पंजाब में जहां जहां नताइज को पलटा गया, तो जहां तक पोलिंग के नताइज उनके पास थे, वो मौजूद है। तमाम नताइज को पलट दिया गया। उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को के आजाद उम्मीदवार, तमाम उम्मीदवारों को उस तरह नहीं हरवाया गया जिस तरह कराची, हैदराबाद में भी गुंडागर्दी की, टंडोला यार में भी, जहां जहां फौज के का ये टोला
एमक्यूएम पाकिस्तान नाम का मौजूद था, इसके नाम से उम्मीदवार थे, वहां इन्होंने हुंडा कर दिया थी। ये बात किसी को नहीं मालूम। फौज के हेडक्वार्टर से तमाम प्राइवेट चैनल्स को, ये बात जरा गौर से सुनिए पाकिस्तानियों, तमाम प्राइवेट जियो, एयरवाइज, एक्सप्रेस, डॉन टीवी, समा टीवी और दुनिया टीवी, यानी जितने टीवी प्राइवेट चैनल्स हैं उनको फोन किया गया कि आप हर जगह हारने वाले का दिखाएंगे, लेकिन कराची में जो आजाद उम्मीदवार जिन्हें अल्ताफ हुसैन ने अपनी हिमायत का ऐलान किया था, उनमें से किसी के का नाम लेंगे जो डिस्कशन बीच में ये नताइज के दरमियान मुबस्सिरीन अपने अपने टेलीविजन, प्राइवेट टेलीविजन स्टेशनों पे करते रहे कि आप लोग एमक्यूएम के किसी आजाद उम्मीदवार का नाम तक नहीं लेंगे टीवी पे, ना उनका निशान दिखाएंगे, लेकिन एक्सप्रेस टीवी पे शायद, या किसी शायद एक्सप्रेस टीवी पर एक हल्का अजीराबाद का मेरा जहां घर है, वहां से निसार अहमद पवर जो जेल में बंद किए गए हैं, नहीं जेल में नहीं, गायब किए गए हैं, किडनैप किए गए, कहाँ है उनका कुछ नहीं पता, और उनके बेटे का कुछ नहीं पता, मोहसिन पवर का। तो वहां पर एक स्लाइड चली थी, पता नहीं वो मौजूद है, अगर है तो सिर्फ वो लोगों को एक चीज दिखा दे कि उस वक्त तक 11 बजकर रात के 44 पर शायद की एक पट्टी है जिसमें निसार अहमद पवर का बताया था कि 16,000 समथिंग वोट लेकर आगे हैं। अगर ये क्लिप किसी के जी, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किसी स्क्रीन पर ये आ गई, देखे एक्सप्रेस न्यूज 11:53 PM, रात 11:53, यानी 12 बजे से पहले आजाद उम्मीदवार निसार अहमद पर 16,312 वोट लेकर पहले नंबर पर, गैर सरकारी नतीजा। अब आप बताइए 11:53 तक जब 12 बजे पोलिंग बंद कर दी गई, तो उसके बाद 16 से गिनती कहां जाती? 16,000 से गिनती कहां जाती? लाखों तक जाती या हजारों तक जाती। लेकिन क्या एक्सप्रेस के अलावा किसी और टीवी, जियो, एआरवाई, समा ने यह जुर्रत की? ऐसी चीजें इनके पास जरूर आई होंगी, लेकिन क्योंकि हुक्म GHQ था, हुक्म आप पारा था कि अगर किसी टीवी चैनल ने एमक्यूएम के सपोर्ट करता आजाद उम्मीदवारों का नाम लिया या ऐसी क्लिप चलाई, तो उसको उसका सूद मतलब उसका हिसाब देना होगा। यानी फिर आपको आपके साथ जो किया जाएगा, जो फौज करती रहती है, वही किया जाएगा। ये बात नोट करने की। किसी प्राइवेट चैनल ने पूरा पाकिस्तान के एमक्यूएम के किसी उम्मीदवार का ये दिखाया, निसार अहमद पवर ने 16,000 वोट लेकर आगे, ये दिखाया किसी टीवी ने? सिवाय एक्सप्रेस ने पट्टी चलाई, सिवाय एक्सप्रेस ने। शुक्रिया एक्सप्रेस वालों, आपने इतनी तो हिम्मत की। अल्लाह
जिन्होंने ये चलाई पट्टी, अल्लाह उनको अजर दे। बाकी टीवी वालों ने नहीं चलाई, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। क्यों कि टेलीविजन में सिर्फ जो टीवी से मुंसलिक वो जो खबरनामा पेश करते हैं या मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं या इमरजेंसी यानी या इलेक्शन इलेक्शन नताइज के वो जो 24 घंटे का बनाते हैं अपना, उसमें एंकर पर्सन भी होते हैं, उसमें तजज़िया निगार भी होते हैं टीवी के, उसमें मुबस्सिरीन भी होते हैं। बस बाहर जगह बाहर से तजज़िया निगार पॉलिटिकल जो उसके मुलाजिम नहीं होते उस चैनल के, उन्हें भी बुलाया जाता है। वो सब भी कोई टीवी पाकिस्तान का ऐसा नहीं था 12 बजे तक जिसने ये ना अपने तफसीरों में बताया है कि पीटीआई आगे है, कराची में आजाद सबका बताया, लेकिन एमक्यूएम के किसी एक कैंडिडेट का ना फोटो दिखाया ना नताइज बताए। खैर ये तो धांधली के आपको और सबूत इंशाअल्लाह ये जो सियासी जमातों से को काम करने की इजाजत है उनके मुकला यकीनन इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल में और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में सबूत और शवाहिद के साथ फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वो लेकर जरूर अपना मुकदमा इन अदालतों में पेश करेंगे। लेकिन ये तो होगा, लेकिन अब मैं बता दूं फौज ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जिस तरह पोलिंग बंद करके अपने हेडक्वार्टर्स में रिजल्ट्स बनाए, ये अमल जो फौज ने किया है, फौजी जर्नैलों ने, फौज की इलीट ने, फौज की अफसरशाही ने, फौज की जनरलशाही ने, लिखना में अल्फाज कि कमजोरों पर तो आप बलोचिस्तान में गोलियां चला सकते हो, सिंध के शहरी इलाकों में गोलियां चला सकते हो, लेकिन तुमने अगर इन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपने इसका सुमोटो एक्शन नहीं लिया तो मेरे अल्फाज लिख लीजिए, अटक से लेके हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और बलोचिस्तान की मिलने वाली सरहद तक का केपीके का इलाका मुस्तकबिल में आज नहीं तो कल आपकी फौजी जनरलों आपकी हरकतों से अलग हो जाएगा। आप में से कोई अटक से क्रॉस करके केपीके के किसी इलाके में नहीं जा सकता। इसको लिख के रख लीजिएगा। मैं तमाम एंकर पर्सन से, मैं तमाम तज्जिया निगारों से कहता हूं, खुदारा हमें मालूम है आप पे बहुत दबाव है, लिहाजा आप तज्जिया करते हुए बहुत मोहतात रहिए, क्योंकि कल आने वाला कल अवाम का होगा, फौज के जवान का होगा, राज अवाम का होगा। उस वक्त जहां फौज के जर्नैल वर्दी में बाहर निकलने से, सड़कों पर निकलने से, बाजारों पे निकलने से काफिर होंगे, उसी तरह
आपको इसको धमकी ना समझिए, तंबीह कर रहा हूं, ये बहुत ही ईमानदाराना और हमदर्दाना तंबीह कर रहा हूं कि आप तज्जिए में इतना मत जाइए कि आप मुस्लिम लीग की शिकस्त, बदतरीन शिकस्त को जीत में दिखाएं। पीपल्स पार्टी ने जहां जहां सिंध में जीती है वो ठीक है, बाकी और जहां जीती है, लेकिन अगर आजाद उम्मीदवारों के मुकाबले में जीती है तो पीटीआई के बारे में भी तज्जिया कर, वो पीपीपी के बारे में भी तज्जिया करते हुए और मुस्लिम लीग की हिमायत में तज्जिया करते वक्त बहुत मोहतात रहिए। क्यों कि आने वाला कल जहां फौजी जर्नैलों के लिए ममनू होगा, अगर आज आपने गलत बयानी से काम लिया तो आप भी अपने अपने इलाकों में नहीं रह सकेंगे। इस बात को याद रखिए। मैं कराची के, हैदराबाद के, चंडोलायात के, नवाबशाह के, सक्कर के अवाम को, सागर के, देवपुरहाट के, उमरकोट के, सोमरा के तमाम अवाम को अपने दिल की गहराइयों से और आज ये तहसील पेश करता हूं अल्ताफ हुसैन के जाने वाला, अल्ताफ हुसैन से प्यार करने वाला, तुम्हें अल्ताफ हुसैन का सलाम, तुम्हें अल्ताफ हुसैन के प्यार में लाखों करोड़ों अरबों प्यार, अरबों प्यार, अरबों प्यार। तुम अपने असल बाप के हो, अपनी अच्छी नस्ल के हो कि तुमने वफा को नहीं तोड़ा, अपने हक को नहीं तोड़ा और अल्ताफ हुसैन के नामवद उम्मीदवारों के लिए तुम घरों से लाखों की तादाद में निकले। तुम्हें अल्ताफ हुसैन, तुम्हारी जुर्रत और हिम्मत को अल्ताफ हुसैन सलूट करता है। ये बच्चा बच्चा जानता है कि ये बेगैरत गद्दार मरदूद शैतान की औलाद, गद्दार इब्ने गद्दार, एमक्यू पाकिस्तान और पीएसपी का मिला जोड़ा तोला, ये बेगैरत इतने हैं कि अपनी जीत बता रहे हैं, अपने जश्न का ऐलान कर रहे हैं, जबकि कराची का बच्चा बच्चा जानता है, हैदराबाद, पीरपुरा, सक्कर, पूरे सिंध के शहरी इलाकों का बच्चा बच्चा जानता है कि आपको हरा कर भी मेरे तमाम नामजद उम्मीदवार सारी शरीयत से कामयाब हो गए हैं। तुम्हारा लाखों की तादाद में घरों से आजाद उम्मीदवारों को वोट देने के लिए निकलना कि अल्ताफ भाई ने अपील की है, इनकी हिमायत की है। तुम्हारे इस घर से बाहर निकलने के अमल और अपने उम्मीदवारों को वोट देने के अमल पर तुम्हारा अपना अल्ताफ से तुम्हें सलाम सलाम सलाम, अपना प्यार पेश करता है। और आपके साथ साथ पीटीआई के चाहने वालों, इमरान खान के चाहने वालों, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले नौजवानों, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले वालिमाओं, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, तुमको अल्ताफ हुसैन इमरान खान से वफादारी निभाने और इमरान खान के आजाद उम्मीदवारों को शाबाश, उनके पोलिंग एजेंट्स को शाबाश
वोट दिया, तुम्हें भी शाबाश और खराज तहसीन पीटीआई मानो। शाबाश, डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है। कोर्ट्स में अदालतों में सैकड़ों नहीं, हाँ शायद सैकड़ों हो जाए जिनके साथ बेईमानी हुई है, वो सब अदालत में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, और रिजल्ट पलटेगा। नहीं पलटेगा तो जीएचक्यू आप द्वारा फौज के जर्नैलों को पलटा दिया जाएगा। कौन देगा? अवाम, पाकिस्तान की अवाम। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हौसले हिम्मत से काम लीजिए। हमें पाकिस्तान को बचाना है। ये चंद करम जर्नैलों ने पहले पाकिस्तान तोड़ा और हम भी तोड़ना चाहते हैं। ऐ पाकिस्तान के लोगों, निकल जाओ घरों से और पाकिस्तान को बचा लो, वरना फिर पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज। मैं इसके साथ उन तमाम आजाद उम्मीदवारों को जो गिरफ्तार हुए, जो आज तक गिरफ्तार है, मोहसिन पवर और निसार पवर और जो अब तक रिलीज नहीं किए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो, और जो गिरफ्तार नहीं हो सके वो, मगर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने हिस्सा लिया और ये लानी अल्ताफ हुसैन की हिमायत कबूल की। आपको भी सबको खराज तहसीन, सलाम तहसीन और अपना प्यार पेश करता हूँ। जीते रहिए, खुश रहिए। मैं उन माओ, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों को जो घरों से निकले, उन्हें सलाम पेश कर चुका हूँ इस मरतबा। और इसके अलावा मैं अब ओवरसीज चलता हूँ। ओवरसीज के लोगों ने अपनी अपनी बिसात पर तमाम यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, यूएई, यहाँ के लोगों ने जिस तरह ताउन किया है, उनको भी मैं खराज तहसीन दिल की गहराइयों से शाबाश और अपना प्यार प्यार पेश करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। और अब मैं आता हूँ राबता कमेटी। राबता कमेटी का के अराकीन कई रातों से आज के दिन तक मुसलसल जागते रहे हैं। कोई बिल्कुल जो एनर्जी थी उससे फल हो गया, तो वो जहां जगह मिली कर रखा और सो गया। 1 घंटे बाद फिर उठ गया, 2 घंटे बाद फिर उठ गया, फिर काम शुरू। राब्ता कमेटी के एक रुकन, इलेक्शन, एक फर्ज, खुसूसन जो लंदन में राब्ता कमेटी के अराकीन है, वो आसिम और वो मुस्तकिल, ये तो यही रहे, इंटरनेशनल सेक्रेटरिएट में रहे। एमक्यूएम यूपी के लोग साथी जो है वो जागते रहे। और अब मैं किस का नाम लूं? अरशद हुसैन, सुफियान, रावेश, आतिफ शमीम, महफूज हैदरी, शाहिद रजा, शाहिद रजा और कासिम का ले चुका हूँ। और उनकी और तहरीक में माली मुश्किलात के लिए घर घर
अब आप घर घर कहेंगे तो मतलब अब तो टेलीफोन पर ही बात होती है, तो टेलीफोन पर वाली मामलत के लिए मुकदमात के सिलसिले में और इलेक्शन के सिलसिले में मेहनत रास्ते करने वाले रेहान इबादत समेत और माविन उफरान हमीद और जो एमपीएम के माविनीन हैं वो, उन सबको दिल की गहराइयों से बड़ा तहसीन और शाबाश पेश करता हूँ। और हसान भट्ट तो बेटा है ना, तो बेटा राब्ता कमेटी का रुकन है, उसका कौन नाम लेना? अपने बेटों को तो भूल जाते हैं ना। हसान भट्ट रुकन राब्ता कमेटी, कोई रह तो नहीं गया? नहीं। अब आइए, इसकी इलेक्शन की निगरानी कौन कर रहा था? बहुत सीनियर रुकन अल्ताफ हुसैन से दिल की गहराइयों से सच्चा प्यार करने वाला डॉक्टर नदीम साहब और तमाम ओवरसीज के जो चैप्टर्स हैं उनके सीओसीज के मेंबरान, इन सबको कारकुनों को ओवरसीज के सबको खराज तहसीन शाबाश, अपना प्यार दुआएं पेश करता हूँ। अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। और आखिर में कन्वीनर एमक्यूएम रब्ता कमेटी मुस्तफा अली रब्बानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, अपना प्यार पेश करता हूँ। जीते रहो मुस्तफा, खुश रहो, सलामत रहो, आप सब सलामत रहे। बार बार मुस्तफा जबादी मेरा प्यार भी कबूल कीजिए और आप सब मेरा प्यार कबूल कीजिए। सब जगहों के मेरे साथियों अवाम मेरा प्यार सलाम शाबाश कबूल कीजिए। मायूस मत होइए, मायूस मत होइए, सफर जारी था, जारी है। ये जाली जीत को गद्दारों की, ये गद्दार है, ये मुनकिरीन है हल्फे कुरान है, ये फारी एजेंट्स है, ये मुहाजिर दुश्मन है, अवाम दुश्मन है। इनकी जाली जीत को प्लीज, आप जानते हैं, आप ऐनी शाहिद है उस इनके इनकी इनकी इनके जश्न जाली जश्न चरागा या जश्न जो भी ये कर रहे हैं, इस जाली जश्न को मनाने दीजिए। कल जमाना पलटेगा, इनमें से एक भी कराची हैदराबाद कहीं नजर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। ज्यादा घबराना नहीं। देखो ना, वो 92 में जिन्हें बनाया था वो कहीं कामयाब हो सके, फौज ने इन्हें बनाया, ये कहीं कामयाब नहीं हो सके। ये जाली रिजल्ट पे मत जाना। तुम तो शाहिद हो खुद, कराची वालों, हैदराबाद वालों, चक्कर वालों, समारोह वालों, उमरकोट वालों, मीरपुरवास वालों, आप यार वालों, तंडोजाम वालों, आप तो जामशोरों वालों, आप तो गवाह हो, आप तो ऐसी शाहिद हो, भाई बहने शाहिद है कि आप जीते हो। ये पूरी तरह शिकस्त खाई है। आपकी घरों से बाहर निकलना ही जीत थी, जीत थी, जीत है। और इस बात की अलामत है कि हम एक दूसरे से चाहने वाले कल भी जिस मोहब्बत से, अकीदत से जुड़े हुए थे, आज भी उसी तरह नहीं बल्कि नई नस्ल आ गई है और ज्यादा बड़ी तादाद में हम जुड़ गए हैं। एमक्यूएम की हिमायत याफ्ता लोगों की तादाद में कमी नहीं। पूरे देश के शहरी इलाकों में और पूरे पाकिस्तान में जो जागीरदाराना वडेराना करप्ट पॉलिटिकल सरमायादारों से, पॉलिटिशियन से के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं, उन सबको भी ये जाली जहां जहां जीते दिखाई गई है, नहीं उस पे मत जाना। आप लोग जीते हो तो मैं तमाम उन
उन लोगों को जो एमक्यूएम के फलसफे पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, केपीके में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, बलोचिस्तान में हो, बल्तिस्तान, हजारवाल, गिलगित बल्तिस्तान में हो, चित्राल में हो, जहां किसी भी हिस्से में हो पाकिस्तान के, मैं उनसे कहता हूं जो आप जुड़े हुए हैं और आज तक जुड़े हुए हैं, तो आपसे अपील करता हूं कि और अगर आप जुड़ना चाहें तो MQM इंटरनेशनल राब्ता करें और MQM की तादाद में मजीद कुव्वत का बारिश बने। और जो DTI के हमदर्द हैं उनसे भी कहता हूं तुम भी इमरान खान के साथ जुड़े रहना और फौज के जर्नैलों के साजिशी हथकंडों, इनकी बदमाशियों, इनकी हुंडागर्दियों से घबरा कर इमरान को छोड़ना नहीं, उसके साथ जुड़े रहना। और सिर्फ ख्वातीन और हज़रात, आप जिन्होंने MQM के आजाद उम्मीदवारों को वोट डाला, आपको आपकी जीत मुबारक हो। ये जाली जीत, ये शिकस्त खोरदार है। मैं आज भी चैलेंज देता हूं यूनाइटेड नेशंस के अमले को बुलवा के सिर्फ ये इलेक्शन 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन और वहां से नामजद करदा इलेक्शन कमीशन बना के सिंध में भेजे। खुदा की कसम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से अपील करता हूं कि मेरी अपील पहुंचाइए तमाम साथी कि आप आए, दोबारा करा के अपना इलेक्शन कमीशन ला के, जैसे आपकी पीस कीपिंग फोर्स है उसको भी ले आइए। पाकिस्तानी फौज नहीं चाहिए हमको, अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्स माइनस पाकिस्तानी फौज, ये फौज ले आइए, इलेक्शन अमला ले आइए और आप इलेक्शन कराए सिंध में अपनी निगरानी में, अपने मुबस्सिरीन, अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर ROs की मौजूदगी में। अगर मेरे हिमायत करदा उम्मीदवार नाकाम हो गए तो मैं सियासत से अलहदा हो जाऊंगा। हाँ, जो मेरा फलसफा है, जो मेरी फिलॉसफी है और जो मेरा नजरियाती काम है अपनी सोच का, उसके जरिए मैं पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत की बका और एहतराम के लिए मैं अपना काम करता रहूंगा, सियासत से अलहदा हो जाऊंगा। बहुत बहुत साथियों, शाबाश कराज तहसील, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और ये भी सबको, पाकिस्तान के अवाम को इतनी हिम्मत दे कि वो जर्नैलों को पाकिस्तान तोड़ने की मजीद जो साजिश कर रहे हैं उन्हें नाकाम करें और पाकिस्तान को बचाए। पाकिस्तान जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद, पाइंदाबाद।